Hi, good afternoon. Yeah, how are you? I'm good, and you? Okay. So, Aman, you had some basic conversation with Devanshi regarding social media marketing position. Yes, ma'am. Yeah. So, I would like to know more in brief what type of activities you are handling and what type of opportunity you have explored in social media in organic and paid both. Uh, Especially, I'm working on paid ads in social media marketing, and I run almost five to six Your industry. voice is breaking. Hello, hello. हेलो Uh, या की जी, आवाज़ ब्रेक हो रही है. hello. एक second, ma'am. I'll check the network connection. Uh, Now I'm audible. Now am I audible? Yes, 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 yes. Okay. Firstly, I like to introduce myself. My name is Aman Trivedi. I live in Gwalior and I have expertise in social media marketing and over experience of around 2 years in digital marketing. And Okay. basically, I run ads for real estate clients and school. There is a school, Kidsy. I run ads for them, Okay. and there is an industry, solar panel industry. For them, we generated around 200 plus leads for them for their solar So panel is company. it, sorry to interrupt you, but solar panel, I mean B2B industry or B2C industry? B2B industry. Okay. There is a client, yes, techno On engineers. Meta, right? Yeah, Meta ads. Okay. So Yeah, please continue. there are some results I can show you if you allow me. Yeah, sure, definitely. You can Okay, share your I'm screen okay. and you can share what type of, how, I mean, what type of campaign you have handled. Okay. Sure. Uh, can you see my dashboard? Facebook ad dashboard? करंटली आपकी व्हाट्सएप स्क्रीन दिख रही है. मैम शायद से लैग हो रहा है इसके अंदर सीजन. Yes, yes, Yes. now I can see your. Okay, okay. So this is the dashboard of one of our clients for which we Okay. have run Facebook ads. There is a real estate client. Okay. So as you can see, we have generated around, we have run multiple campaigns. Like there is a campaign for which we have generated 523 leads, and around the CPL of that campaign is 37 rupees per lead. Got it. Okay. And then there are another campaign for which we have generated 1400 plus leads at the cost of Okay. just 21 rupees. And around we have 484 leads, 484 meta leads, right? 1409 leads from this campaign and 484 leads from this campaign and 523 leads from this campaign. Actually, we are testing so many things like videos and offer that our customer that like. Okay. So we have spent over 87,000 on this client. That is, you are talking about on tailored PH2 campaign. I mean, 484 leads. No, there is a campaign tailor 484 leads, and there is another campaign SGCPH. There is Yes. short Sri Ganesh Colony phase 2. There is a full form of that campaign. Okay. And another ad account. The Digital Marketing Institute Digital Prachar, where we have generated leads for getting admissions. Okay. Like there is a campaign. Are you sharing? Yes, I'm another, sharing. I'm ad sharing. account? Another account. There is a ad account number 174. But I am able to see your. There is a network issue, I think, ma'am. There is a network Yes, issue. yes. Is this visible now? नहीं, आपका वही स्क्रीन दिख रहा है जो पहले दिख रहा है.
हाँ अभी हुआ हुआ मैं सर। थोड़ा सा लेट, इसमें थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा Yes, इशू आ रहा yes. है। चल, तो यहाँ पर ये मेरे कैंपेन से मैं इसको मैक्सिमम पे सेट कर देता हूँ। Okay. There is an ad for kids school, therefore we have generated 96 inquiries. Okay. 96 inquiries. You can see this. Yeah. Okay, ma'am. So this is one of my ads for kids school. There is another ad, 25 leads we have generated, and then there is an ad for Detail Prachar Marketing Institute, for which I have run campaigns. We have generated 196 leads from this campaign, Office View campaign, and this cold audience campaign 52 leads, and from this campaign we have generated 62 inquiries, around not 500 plus leads for Detail Prachar Marketing Institute, to getting Okay. students and spend over 25,000 from this ad account. Okay. But as you said कि around 500 leads, in how much time you have like campaign duration क्या है? ओके मैम, एक्चुअली क्या है, क्लाइंट्स का जो हमारा क्लाइंट रहता है वो डिपेंड करता है कि वो उसे कब कैंपेन किसी किसी मंथ को बंद करा देता था। तो अराउंड ड्यूरेशन का मैं आपको बताऊं, ये ड्यूरेशन है आपने लास्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर आई है ये। ऐसे ये इन्होंने कैंपेन रन कराया था 5 अक्टूबर को 25 के अंदर, फिर देन इन्होंने थोड़ा वेट किया, देन इन्होंने फिर 14 दिसंबर को फिर इन्होंने ऐड चलाया। तो इस तरह से क्लाइंट का जैसे एडमिशन हो जाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं प्रोसेस का, देन हमें वापस इसको लिए स्ट्रेटजी बनानी होती है, नए वीडियो शूट करने होते हैं। तो अराउंड आपका ये कहूँ अक्टूबर में हमारा क्लाइंट स्टार्ट हुआ था, देन अभी तक ये हमारा चल रहा है। Okay. Okay. All right. So, so as you have explained, you have managed 3 paid 8 campaigns. That Yes. is one for real estate, one for institute, And one for kids school. third one is yeah. Kids school. There is another one, solar panel company. I can show you. Okay. एक second. I've run many campaigns, but I couldn't have the access of that account. Okay. Mainly, my specialization is in lead generation. Okay. That's great. Actually, we are branding agency only, and we are working with clients, B2B clients. Okay. Majorly हमारा B2B clients है, तो हमारा भी end goal रहता है पे campaigns में वो lead generation ही होता है, because Okay. we are not dealing with B2C brand. B2B अपना बिजनेस रहता है। Okay, definitely. B2B and B2C both. Both. Okay. Yeah. This is my, as you can see, that's 970 account, ad account. Yeah. Yeah, okay. So this is the campaign. Engagement. सोलर एंगेजमेंट इंटरेस्ट कैंपेन चलाया था। इसके अंदर 127 कन्वर्सेशन हमने जनरेट की थी क्लाइंट के लिए। 127 ये वाला कैंपेन था, और मल्टीपल कैंपेन चलते हैं हम इसके अंदर। जैसे कि एक हमारे एक और अकेडमी थी, उत्कर्ष अकेडमी, जो कि IAS और प्रिपरेशन कराती है, उनके लिए भी हमने कैंपेन रन किया था। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि बजट उनका मैच नहीं कर पाता है, तो वो आगे हमारा कंप्लीट नहीं कर पाते चीज़ों को। एड्स बजट उनका कम होता है, तो रिजल्ट जनरेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। आपका एड बजट अगर कम होगा तो हमें स्केलिंग करने के लिए, रीटारगेटिंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पर जाता हूँ तो मुझे रीटारगेटिंग पर जाना पड़ेगा, मुझे ऑडियंस के साइज को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर ये बजट इनका अलाउ ही नहीं करता उस चीज़ को, तो हमें क्लाइंट को छोड़ना भी पड़ता है उस समय। Okay. ओके मैम। So, what type of aid you have run? In Video? lead generation, what was the goal? I mean, message. What was the goal? Okay, ma'am. Leads through website or what? And what do you recommend? What's the ओके मैम, from which type? आई गॉट इट मैम, आई गॉट इट। Get quality leads. ठीक है, मैं सिंपल सा मैं आपको सिंपल सा लॉजिक से मैं आपको समझाता हूँ मैम। क्या होता है कि बेस्ट वे होगा मैम लैंडिंग पेज पर लेकर जाना,
एज अ फनल क्रिएट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कस्टमर की जर्नी को बढ़ाएंगे उतनी प्री क्वालिफाइड लीड्स आपको मिलेंगी। आप शॉर्ट जर्नी रखोगे क्लाइंट की, वो इजीली हायर करेगा, आपको रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वो लीड्स काफ़ी होंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं व्हाट्सएप कैंपेन चलाता हूँ, कंपैरिजन फॉर्म ऐड के उसकी क्वालिटी कम होगी, क्योंकि फॉर्म ऐड में हम उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कस्टम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिससे कि सिंपल सी बात है, अगर उसको इंटरेस्टेड होगा तभी फॉर्म फिल करेगा, अदरवाइज फॉर्म फिल नहीं करने Right. वाला। और सिंपल अगर हम वेबसाइट पर लेकर जाते हैं, लैंडिंग पेज पर लेकर जाते हैं, वहाँ तो पे और सारी इंफॉर्मेशन हो। और क्वालिफाइड होगा, और उसका पिक्सल हमारा पूरा डेटा ट्रैक कर लेगा, और उसको हम रीटारगेट कर सकते हैं लोकलाइक ऑडियंस के थ्रू भी, लोकलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं, रीटारगेटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे हम उसके लिए। बट क्या होता है, वही हमारा क्लाइंट अगर आप अलाउ करता है लैंडिंग पेज के लिए, ऐसे क्लाइंट भी होते हैं सर हमारा फॉर्म से चला दीजिए, लेकिन रिकमेंडेशन में अगर कॉस्ट पर लीड मैटर नहीं करता, अगर आपकी क्वालिफाइड लीड से कॉस्ट पर लीड मैटर करता ही नहीं है, और वो कॉस्ट पर लीड आपको तभी अच्छा मिलेगा, जब वो क्वालिफाइड लीड तभी अच्छी मिलेगी जब आपको लैंडिंग पेज पर लेकर जाएंगे, कोई भी आप एक फनल के थ्रू लेकर जाएंगे, उसको व्हाट्सएप के थ्रू फॉलो अप करेंगे, ऑटोमेशन लगाएंगे, तभी वो आपकी लीड वाकई में आपको कन्वर्जन की तरफ लेकर जाएगी। अब लीड्स को वेस्ट कर दोगे अगर आपने फॉलो अप नहीं लिया वहाँ, वो भी ज़रूरी है। राइट। जी ओके। सो ये हुआ पेड कैंपेन्स, जी राइट? मैम। व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक? व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स यू हैव हाँ हैंडल्ड? मैम, आई एम सो सॉरी मैम, मैं पेड कैंपेन्स के ही मेरी स्पेशलाइजेशन है। मैं ऑर्गेनिक में कंटेंट के लिए हेल्प कर सकता हूँ कि ट्रेंडिंग कंटेंट क्या रख सकते हैं, जो मार्केट में कंटेंट ट्रेंडिंग चल रहा है उसके थ्रू हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, हम हुक पॉइंट्स का यूज़ करके एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन में एड्स में ही रहा है, लेकिन मैं कंटेंट में हेल्प कर सकता हूँ किसी भी वे में, ऑफर्स क्रिएट करने में मैं हेल्प कर सकता हूँ, आप हुक को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मैं कॉपी राइटिंग में हेल्प कर सकता हूँ, जो एंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं। But इसमें है what's your interest? Do you have an interest in organic? मैम, ऑर्गेनिक नहीं, मेरा पेड मीडिया के अंदर ही, मेरा पेड एड्स के अंदर ही मेरा स्पेशलाइजेशन है, और मैंने वहीं पर काम किया है। Devanshi, as per my conversation with you, you told me that Amit is interested. Aman is interested in both organic and paid. Am I right? ना ना मैम, इंटरेस्ट इन द सेंस कि मैं कहूँ अपने एक्सपर्टीज बताऊँ, तो देन मेरा एक्सपर्टीज पेड That एड्स is में है। okay. I got your point. But आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना ऑर्गेनिक में, सो बिकॉज हाँ। हमारे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जिसका हम 360 डिग्री मार्केटिंग कर रहे हैं, हम पीपीसी भी कर रहे हैं, हम एसईओ भी कर रहे हैं, हम लोग उसका ऑर्गेनिक भी हैंडल कर रहे हैं और पेड भी कर रहे हैं, डेटा हाँ। एड्स भी कर रहे हैं। मैम, इंटरेस्ट तो मैं आपको मैम इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा इंटरेस्ट पेड एड्स में रहता, लेकिन अगर आपका ऐसा क्लाइंट है, मैं बिल्कुल उसमें इंगेज कर सकता हूँ, किस तरह से ऑर्गेनिक में अपन कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम के अंदर जो और लोग हैं वो ऑर्गेनिक पे काम करते हैं, तो मैंने देखा हुआ है चीज़ों को, और मेरे को वही स्ट्रेटजीज पता भी है उन चीज़ों के लिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ में जा भी सकता हूँ, उससे मेरे को कोई इशू नहीं है। ओके, बिकॉज आई एम क्लेरिफाइंग दिस थिंग अमन, फिर ऐसा ना हो हमारा टेक्निकल हो जाए, नो प्रैक्टिकल हो मैम, नो जाए, मैम, और नो मैम, एंड में मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं भाई ये तो ऑर्गेनिक के लिए भी था, नॉट ओनली नो फॉर मैम, पेड। नो मैम, बिकॉज इसमें कोई अभी issue हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स नहीं। जी हैं, मैम। हम लोग जो भी क्लाइंट्स हैं उसमें ऑर्गेनिक पोर्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेड, बट येस ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हमने ऑनबोर्ड किए हैं मार्च मंथ में, तो ऑफकोर्स उसका पेड तो आने ही वाला है जी। बाय द टाइम। जी बट एज ऑफ नाउ मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि हमारे पास जो पेड एक्सेस है हमारे क्लाइंट्स का, वो ओनली 2 और 3 क्लाइंट्स के लिए। ओके मैम, नो इशू, आप बेफिक्र रहिए, इस तरह का कुछ भी नहीं। आप में ऑर्गेनिक सारी मैम स्ट्रेटजी पता है, बस एक होता है ना अपना नीश डिसाइड कर लेता है बंदा कि इसमें जाना, ऐसा नहीं, मेरे को एसईओ से लेकर गूगल एड्स से लेकर सब में एक्सपर्टीज है। मेरा पसंद मेटा एड्स में, आप गूगल एड्स से भी कुछ पूछेंगे, मैं आपको, आप बाल की खाल भी पूछेंगे, मैं वो भी बता दूंगा, मैं आपको, आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो बस यही है कि मेरा एक्सपर्टीज था, वो मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो सारी चीज़ें मेरे को आती हैं, तो आप चाहें तो पूछ भी सकते हैं उसके बारे में। Okay, so you know like how you can make content calendar for the Definitely, ma'am. organic Definitely. social media accounts, what type of strategy you have to make for organic engagement, follower, how Definitely, you can definitely. increase followers and everything. Okay, I can give you an example. There is a client, Tula Wellness. This client
प्रोवाइड्स स्किन केयर जस्ट थ्रू लेज़र ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे स्किन केयर के। तो उनका पूरा कैलेंडर मैंने बनाया हुआ था कि वीक 1 में क्या जाना है, टेस्टिमोनियल जाना है, वीक 1 में लोगों के पेन पॉइंट्स जाने हैं कि जो परेशान हो रहे हैं लोग उनको फोकस करना है, देन उनको हमें दिखाना है, उसका सॉल्यूशन दिखाना है, बिफोर आफ्टर दिखाना है। ये ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोग किस तरह की वीडियोस डालते हैं, वो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से हम ट्रेंड से उठा सकते हैं। और स्क्रॉल आउट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम तो लेना पड़ेगा, स्क्रॉल आउट के मार्केट में क्या चल रहा है, कंप्यूटर Yeah. एनालाइज करना पड़ेगा, वो Yeah. सारा मैंने किया हुआ है उनके लिए। Okay. जी मैम। Okay. So, like in paid campaigns, as you have handled lead generation campaign, जी। right, on Meta. So, what do you recommend? What type of settings we need to use? Advantage plus audience या फिर manual ही use चल करना मैम, चाहिए? सिंपल सा है एग्जांपल। मैनुअल, आप जब मैनुअल वाला लेते हैं, सिंपल सा, अगर हमें आपके पिक्सल में अच्छा खासा डेटा है, आपके पिक्सल में डेटा है, देन आप जाइए एडवांटेज प्लस कैंपेन की तरफ। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, देन आप जाइए मैनुअल की तरफ, अपने पिक्सल को थोड़ा सा ग्रो होने दीजिए, देन एडवांटेज की प्लस जाइए, जिससे आपका फेसबुक आपके ऑडियंस को समझ सके किस तरह की ऑडियंस है, तो वो अपने आप उसको ऑटोमेट पर एआई के थ्रू कर लेगा। तो स्टार्टिंग फेज में मैं मैनुअल की तरफ जाऊंगा। अगर उसके ऐड अकाउंट में बिल्कुल भी पिक्सल में डेटा नहीं है, उसके ऐड अकाउंट बिल्कुल भी नर्चर नहीं हुआ है, तो मैं मैनुअल की तरफ जाऊंगा। नर्चर ऑलरेडी है, ऐड अकाउंट में ऐड चल चुकी है, मैं एडवांटेज प्लस कैंपेन को फिर भी मैं टेस्ट करूंगा। मैं टेस्टिंग पर जाऊंगा, देन मैं डिसाइड करूंगा मेरे लिए क्या काम कर रहा है। मल्टीपल बिजनेसेस के लिए डिफरेंट हो सकती हैं स्ट्रेटजी, इसलिए आप टेस्टिंग के थ्रू ही जाएंगे। और अगर इसका एक आंसर है तो पिक्सल के अंदर डेटा है, आपके ऐड अकाउंट के अंदर डेटा है, तो आप एडवांटेज प्लस के साथ जाइए। अदरवाइज आप मत जाइए, मैनुअल की तरफ जाइए। आप मैनुअल में के अंदर भी और जो डिटेल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फीड और रील्स पर ही आप फोकस कीजिए स्टार्टिंग में, स्टोरीज पर, फीड पर और स्टोरीज पर। अपने अगर क्लाइंट का बजट कम है, आप उसको एक्सक्लूड कीजिए चीज़ों को जो कि आपको बजट को फालतू का एक्सपेंड खराब कर रहा है। Okay. जी। And so, what's currently trending? If I am talking about organic में अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, किस टाइप के कंटेंट ज़्यादा चल रहे हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हम सिंपल सा है, जैसे अभी हम बात करते हैं, गिबली तो चल ही रहा है, आपने तो सभी जानते ही गिबली के बारे में, गिबली चल रहा है। देन इसके अलावा जैसे मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, रियल एस्टेट में सिंपल सा है कि आपको जब हम ट्रेंडिंग की बात करते हैं मैम, तो जो फोकस करते हैं कंटेंट बनाने पर, जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी है 1 से 2 करोड़ की रेंज की है, 1 से 2-4 करोड़ की रेंज की है, तो हम 3 उसके वीडियो क्रिएटिव बनाते हैं। हम फोकस करते हैं, एक तो होता है बंदा एग्जांपल के लिए बिजनेस ओनर है, तो हम उसको लग्जरी के थ्रू उसको शो करेंगे ट्रेंड। फॉर एग्जांपल ड्रोन कैमरा से शूट हो रहा है, बंदा कॉफ़ी पी रहा है टेरेस पर, अपने बाहर निकल रहा है, लग्जरी को शो करेंगे, स्विमिंग पूल से निकल रहा है, उस पर फोकस करेंगे। हम टारगेट किसको कर रहे हैं, देन हम बात करते हैं, अगर मैं टारगेट करता हूँ फैमिली की सिक्योरिटी के पर्पज से, तो मैं फैमिली में देखें बच्चे खेल रहे हैं, किचन में वाइफ काम कर रही, उस तरह के ट्रेंड पर जाते हैं कि अगर हमारा फोकस टारगेटिंग ऑडियंस क्या है। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्क्रिप्टिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही हम उसमें वॉइस ओवर डाल के कर सकते हैं, एंकर शूट कर सकते हैं। तो एंकर ज़्यादा हर तरीके क्रिएटिव एंकर वाला भी चलता है। आजकल आप देखते हैं हुक पॉइंट्स, बंदा निकल रहा, टकराया किसी से, फिर सामने ऐड आ गया। अभी ट्रेंडिंग मैंने देखा था एक मैम, एक शादी के कार्ड का प्रमोशन कर रहा था बंदा, कुछ नहीं कर रहा है बंदा, घर में घुस जाता है, किसी से क्या हो गया, रो रही है वाइफ, अरे तुम टेंशन को ले रही हो, शादी का कार्ड देखो यहाँ से बनवाया, तुम भी बनवाओ। मतलब इस तरह का, मतलब स्टोरी के अंदर इंगेज कर दीजिए आप उस बंदे को, तो लगेगा कि इंगेज रहेगा लास्ट तक, तो कंटेंट अपने आप ही वायरल होगा जब स्टार्टिंग में उसे इंगेज कर रहे हो और लास्ट में फिर वो अपना मेन प्रोडक्ट आप शो कर रहे हो। न्यू फीचर क्या है आए इंस्टाग्राम में? न्यू फीचर इंस्टाग्राम के अंदर तो अभी मैंने मैम फाइंड आउट नहीं किया, क्योंकि मैं मोस्टली अभी एड्स पर रहता हूँ, तो वहाँ मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे एड्स मैनेजर के अंदर काम रहता है। और थोड़ा मैं चेकआउट कर लूँगा उसको, जस्ट विद इन 1 and 2 आवर के अंदर वो सारी चीज़ें हम देख लूँगा। ओके, व्हाट इज लीड एडवांटेज प्लस ऑडियंस कैंपेन जो फेसबुक ने नेम रिप्लेस किया है? सॉरी, लीड एडवांटेज, एक मिनट मैं आपको एग्जैक्ट टर्म बताती हूँ।
एडवांटेज प्लस लीड्स कैंपेन। मैम ये सेम प्रोसेस है। अगर मैम एडवांटेज प्लस एक होता है शॉपिंग कैंपेन होता है, वो ई कॉमर्स के पर्पज से होता है, जस्ट लीड वाला पोर्शन डाल दिया, वो एडवांटेज प्लस कैंपेन वाला ही सेक्शन है उसके अंदर। लीड वर्ड का थोड़ा इस्तेमाल कर लिया उसने, क्योंकि वहाँ पर जो सेल्स में करता है शॉपिंग का। डिफरेंस क्या है? पहले ओनली लीड्स ये लोग बोलते थे और अभी ये लोग ने नाम चेंज किया है एडवांटेज। मैम ये क्या होता है, थोड़ा अपडेट के लिए इसमें कई बार पहले भी चेंज किया है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए एंगेजमेंट ऐड होती है, उसके अंदर व्हाट्सएप का फीचर आता है, और किसी किसी के लीड वाली ऐड के अंदर व्हाट्सएप का फीचर आता है। तो थोड़ा सा इन्होंने नाम के साथ थोड़ा सा चेंजेस कैसे कन्वर्जन, पहले सेल्स के अंदर कन्वर्जन और कन्वर्जन ऐड अलग से होती थी, अब वो सेल्स के अंदर कन्वर्जन ऐड को इन्होंने ऐड कर दिया है। तो थोड़े से टर्म्स को चेंज किया मैम, और मतलब वही है। एडवांटेज में फेसबुक एडवांटेज प्लस शॉपिंग है हाँ, ई-कॉमर्स के लिए। शॉपिंग है ना, लीड्स वाला चेंज कर दिया है। अब एडवांटेज प्लस कैंपेन में जो मैंने आपको बताया था अभी कि एडवांटेज प्लस कैंपेन में फेसबुक खुद से, जैसे आपका क्या होता है मैम, जो आपका क्रिएटिव होता है या आपकी वीडियो होती है, वो उसके कंटेंट से जज कर लेता है कि बंदों को किस तरह के लोगों को ऐड दिखानी है। सेल्स कैंपेन वाली बात करें, वही लीड में उसने लीड वाला नाम लिख दिया, मतलब वही है उसका कि फेसबुक डिसाइड कर लेगा आपके क्रिएटिव और वीडियो से कि किसको उस बंदे को ऐड दिखानी है। और मैनुअल में हम डिसाइड कर रहे हैं ऑडियंस को अपनी कि किसको हमको दिखाना चाहते हैं, किसको नहीं दिखाना चाहते। Okay. Have you handled disable account, ad accounts और पेज रिजेक्ट हो गया, ऐसी कोई सिचुएशन आपने हैंडल की है? जी मैम, पेज रिजेक्ट की सिचुएशन, ये स्टॉक मार्केट का ही मेरा एक क्लाइंट था, स्टॉक मार्केट का काम था उसका। तो स्टॉक मार्केट सिंपल सा फाइनेंशियल इश्यूज में आता है। तो अगर आप या तो एजेंसी एड अकाउंट है, मेरे पास एजेंसी एड अकाउंट ऑलरेडी है, जिससे कि मैं आपको बताऊं, मैंने स्टॉक मार्केट की एड की है उसके सॉल्यूशन के लिए कि ये बैन हो जाते, तो आप एजेंसी एड अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। पेज रिस्ट्रिक्शन आते हैं तो आप में पॉलिसीज़ को अगर वायलेट करोगे तो वो आएंगे। तो ऐसा हुआ था स्टॉक मार्केट के वाले केस में हुआ था, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आप डायरेक्टली आप प्रमोट नहीं कर सकते चीज़ों को। जैसे आप सीधे सीधे बोल रहे हो कि हम आपको टिप दे रहे हैं, आप ये जीतने वाले हो, अब नहीं, ऐसा आप करोगे तो बैन होना ही होना है। आप इसको एजुकेशन वाले सेक्टर में, एजुकेशन वाले तरीके से लेके आइए। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। इसमें मैं टिप नहीं दे रहा, मैं आपको बिड नहीं दे रहा, आपको ये करना है। तो उस तरीके से आप मॉडल पे लेके आएंगे तो वहाँ वो रिजेक्शन नहीं होगा। ये हमने रिजेक्शन फेस करने के बाद एक चीज़ हमने रेक्टिफाई की थी कि हमने क्यों हुआ, हमने रिसर्च की क्यों जा रहा है। तो फेसबुक से हेल्प सेंटर से बात हो जाती है, हेल्थ सपोर्ट से बात हुई, क्योंकि एजेंसी अकाउंट मेरे पास है, तो वो बता देते हैं कि इस तरह की आप चीज़ें कर रहे हैं, इस वजह से ये इशू आ रहा है। ये इशू आया था, जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट में मोस्टली आता है, आपका आएगा सोशल इशूज़, पॉलिटिक्स की आप हैंडल करोगे, उसमें ये इशू आएंगे आपके। तो आपको थोड़ा सा अपने स्क्रिप्ट में मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा, डायरेक्टली उस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी है यहाँ पर कि वो फेसबुक हमको डायरेक्ट कर ले। मार्केट वाला यू कैन डू एडवर्टाइज इन स्टॉक मार्केट Yeah. रिलेटेड, इट्स इन पैन इंडिया। हाँ, यस जी बिल्कुल, हाँ जी। हमें 7 स्टेट्स को थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, वहाँ से क्या रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जो आपको पता है 7 स्टेट्स हैं, अपना आसाम हो गया, आपका आंध्रा हो गया, आपका सिक्किम हो उसमें गया। हम एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते या तो रिजल्ट कर ना ना सकते ना हैं, ना but कर result- सकते हैं। केवल आप बैटिंग एड्स को नहीं कर सकते, जो इलीगल चीज़ें हैं, मोस्टली बैटिंग एड्स अलाउ नहीं है वहाँ पर। आपका वहाँ पर कैसीनो अलाउ नहीं है। स्टॉक मार्केट के लिए कुछ Allow. स्टेट्स परमिशन नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ स्टेट्स में परमिशन नहीं है, इसका तो मैम अभी मेरे को आइडिया नहीं है। ऐसा बस नहीं होगी परमिशन, तो मोस्टली वो 7 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। तो एक बार मेरे को आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं जब आप एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हो। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। मैम एजेंसी अकाउंट चलाया था तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आया था। अगर ऐसा है तो मेरे को लुक आफ्टर करना पड़ेगा इसके लिए। एक्चुअली मेरा कैंपेन उससे चल गया था, क्लाइंट भी उससे सेटिस्फाई था, तो इसलिए मुझे साइज से इसका ज़रूरत पड़ेगी। मैंने क्या वर्ड्स में मैनिपुलेट कर दिया था चीज़ों को, तो मैं उस चीज़ पर नहीं गया, फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैंने गूगल एड्स, मैंने एक अपना क्लाइंट था, बैटिंग क्लाइंट था हमारा, टीम का होता है, मतलब एजेंसी जो हमारी है वो लेती है क्लाइंट इस तरह के। तो उसके लिए हमने गूगल एड्स का मैंने ले रखा है, लाइसेंस ले रखा था हमने गूगल एड्स का। जस्ट सिंपली फॉर्म फिल करना होता है, जो आपका लैंडिंग पेज होता है उसके अंदर आपको साफ साफ बताना है कि रियल कैश में बात नहीं हो रही है, इट्स ऑल अबाउट फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो ये चीज़ें हम रेक्टिफाई करके फाइंड आउट करके, अगर कोई इश्यू आ भी रहे हैं तो मैम इतना बड़ा इंटरनेट है, वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, बस आपको रेक्टिफाई करना आना चाहिए, तो बस इतना सा है। So what type of campaigns you have handled in Google AdWords? गूगल एड्स में मैम ओनली PPC एड्स रहते हैं,
पीपीसी एड सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट को रिजल्ट ला के देते हैं तो वही वो प्रेफर करता है। डिस्प्ले एड का हम यूज करते हैं रीटारगेटिंग के पर्पज से, जैसे EPCX means you are talking about पेपर search क्लिक, it? हाँ सर्च है, पेपर क्लिक सर्च है जी। Okay, so you have handled search text ads. हाँ सर्च टेक्स्ट है, प्राइस में अपना मोस्टली हेडलाइंस एड क्वालिटी को फोकस करना होता था, फ्रेज मैच एग्जैक्ट मैच आपको ध्यान रखना है, ब्रॉड मैच पे किस पे चलाना है, देन बिडिंग पे काम करना होता है, आपका लैंडिंग पेज के स्ट्रक्चर पे काम करना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने की हुई है। Okay, so उसमें आपकी एक्सपर्टीज कैसी है? एक्सपर्टीज मेरी काफ़ी अच्छी है, मेरे को पर्सनली ये पसंद है, मैं आप रियलिटी बता दूँ ये मुझे पसंद क्यों है। ये है कि जो मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं ना, गूगल एड्स थोड़ी महंगी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो क्लाइंट्स आते हैं इतने, तो फिर इसका काम करते 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 वो थोड़ा सा इसी में इंटरेस्ट आ गया। गूगल एड्स में मेरा इंटरेस्ट है, बट हमारी जो एजेंसी है उसमें थोड़े कम क्लाइंट आते हैं, तो उस वजह से मैं मेटा एड्स पे प्रेफर करता हूँ। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपको जो चांस मिला है वो ज़्यादा मेटा एड्स पे मिला है? हाँ मेटा एड्स पे ज़्यादा चांस मिला है, लेकिन मैं अपनी फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा गूगल एड का अपना एक्सपीरियंस बनाने के लिए, तो मुझे सारी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से, तो मैं ये तो काफ़ी समय से ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं 2 साल पहले ही सजेस्ट किया कि मेरे को आप भाई यहाँ से भी कर सकते हो आप ग्वालियर के अंदर, तो देन मैंने किया। ओके, सो कितने प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए गूगल एड्स? गूगल एड्स के अंदर अराउंड मैंने एक मेरा योर होम ट्यूटर्स करके था, एक कोचिंग क्लासेस है जो कि घर पे टीचर्स ट्यूटर्स को, जो भी गूगल एड्स प्रोजेक्ट आपने किए हैं वो एजेंसी में अपनी? ना ये एजेंसी वाले नहीं थे, एजेंसी वाले तो क्या है मैम, गूगल एड्स का मेरे को एक्सेस नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। एक्चुअली गूगल एड्स मैं अलग से ही करता हूँ, पर्सनल तरीके से ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने योर होम ट्यूटर्स करके कंपनी है जिसका काम क्या रहता है मैम कि घर पर ट्यूटर्स अवेलेबल कराता है वो, तो उनको ऐसे कि कीवर्ड्स होते हैं, होम ट्यूटर्स नियर मी, होम ट्यूटर्स इन ग्वालियर, तो इस तरह के कीवर्ड्स पर हमने उनके लिए काम किया हुआ है। Okay. And how you have handled conversation जो मेटा में आईफोन के थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस आए हैं? हाँ आपने बता iOS 14.2 आप बात कर रहे हैं, iOS 14.2 में जो आए थे कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, मतलब जो भी आईफोन यूज़र है, एक्चुअली मैं भी आईफोन यूज़र हूँ, तो मेरे को परमिशन आती है कि आप ट्रैक कराना चाहते हैं अपना डेटा कि नहीं कराना चाहते, तो ये बड़ी काफ़ी इसका डिबेट भी हुआ था, काफ़ी की प्रॉब्लम भी आई थी यार ऐसे कैसे होगा, रीटारगेटिंग किस तरीके से करेंगे, तो फेसबुक ने एक मेथड निकाला था, एक कन्वर्जन टोकन निकाला हुआ था और डोमेन को वेरिफिकेशन निकाला हुआ था, उससे वो सॉल्व ज़्यादातर हो गया। वो फेसबुक की एल्गोरिथम थी क्या थी, उन्होंने जस्ट हमें गाइड किया था आप ये चीज़ अभी करें, पहले एक डायरेक्ट पिक्सल आप डाल देते थे, फिर क्या हुआ डोमेन वेरिफिकेशन भी आ गया, एक कन्वर्जन टोकन भी आ गया, एपीआई टोकन आ गया, उससे वो सॉल्व थोड़ा रेक्टिफाई उन्होंने कर दिया, जैसा इनका बोला, और रिजल्ट्स में भी हमें उसके बाद से इतना कोई रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया कि भाई हाँ दिक्कत आने लगी। कि थर्ड पार्टी से आपको एपीआई कॉल करवाना पड़ता है? सॉरी मैम, थर्ड पार्टी से एपीआई कॉल करवाना पड़ता है? मतलब एपीआई कॉल थोड़ा मैं समझ नहीं पाया मैम इस चीज़ को। आपको iOS वाले कन्वर्सेशन को ट्रैक करने के लिए और उसको टारगेट करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पार्टी ऐप की तो मैम उसका शायद मुझे नॉलेज नहीं है ये इस चीज़ के बारे में। ओके, सो आपने जो भी मेटा एड्स हैंडल किए हैं वो इंडियन क्लाइंट्स के लिए की है या फॉरेन क्लाइंट्स के अब लिए? मोस्टली मैम इंडियन क्लाइंट के लिए किया है बिकॉज हमारे क्लाइंट्स थे यूरोप के, जी। उसमें लीड जनरेशन एड्स थी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसमें थर्ड पार्टी से हमको कन्वर्जन करना पड़ा था iOS को टारगेट, iOS यूजर्स को टारगेट। अच्छा बाहर के लिए तो मैम कुछ नहीं, थोड़ा सा मेरे को समय देंगे, मैं आपको उसको देख लूँगा मैं। It's been long time, it's been 2 years, but yes, एक सेकंड, उसमें ठीक, सॉरी मैम आपको याद गया था। okay, no issue. So you have handled Indian clients only, जी। right, as of now? यस मैम। Okay. So like I mean
we are more working with B2B industry. Okay. And as you know, B2B के लिए LinkedIn ज़्यादा effective जी रहता मैम। है as compared to Instagram. जी। So do you have any experience in LinkedIn marketing? लिंक्डइन मार्केटिंग, लिंक्डइन एड्स तो मैंने रन नहीं किए। लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का काम पता है मुझे, किस तरह से हम कनेक्ट करना चाहता है, किस इंडस्ट्री के ही लोगों को आपको कनेक्ट करना है जो आपकी इंडस्ट्री से वेरी करते हैं। तो ये आपका जो कंटेंट होगा वो ज़्यादातर सही लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि आप अगर जो अपना एक तरह से कम्युनिटी बिल्ड करते हैं लिंक्डइन के अंदर, लिंक्डइन हम कम्युनिटी बिल्ड करें तो कम्युनिटी बिल्ड हम उन्हीं लोगों की करें जो हमारे जैसे लोग हैं, तभी हम जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो सही लोगों तक पहुंचेगा। ऑप्टिमाइजेशन पे मैंने काम किया हुआ है इसके अंदर कि हमने किस तरीके से सही लोगों तक कंटेंट पहुंचाना है, किस तरह कंटेंट मोस्टली लिंक्डइन पे चलते हैं, आर्टिकल्स चलते हैं, हुक पॉइंट चलते हैं कि जितना ज़्यादा मोर पे क्लिक करेगा वो उतना ज़्यादा वायरल होगा वो चीज़। आपका मोर पे ज़्यादा क्लिक करना रहेगा और उसमें पर्सनलाइज ज़्यादा हो रहता है कि आप अपनी खुद की फ़ोटोज़ डालिए, क्लाइंट की फ़ोटोज़ डालिए। कंपेरिजन नॉर्मल जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं वो ज़्यादा काम नहीं करते उसके अंदर, और पर्सनलाइजेशन ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस पर करी हुई है। Okay. So do you have interest to learn LinkedIn? डेफिनेटली मेरे को सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग जो भी रहेगा सब में इंटरेस्ट है। मेरे को एक्सप्लोर करना में बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों में, कि मेरे को ये भी अपॉर्चुनिटी है तो मैं उसको बिल्कुल एक रात में ही खा जाऊँ। इस टाइप का एटीट्यूड मेरा है कि रात के पूरे देखना भी पड़े तो मैं उसको पूरा सीख लूँगा। ऐसा कुछ ऐसा है कि मेरे को नहीं आता, मैं वो सीख लूँगा उसके अंदर। Okay. जी So as you are from MP, right? यस मैम। So why you want to relocate to Ahmedabad? एक्चुअली सम पर्सनल रीजंस आप मैं उसको बता सकता हूँ। कोई है मेरा मतलब वहीं रहना का प्लान है कुछ आगे, इसलिए। You want to settle down in हाँ यस मैम। Okay. And you have started your career from this company only, is that right? Yes, Prakasham Marketing. Just for this agency, because I want to explore multiple industries. So I prefer to join an agency instead of any company at that time. But currently I have learned so many things. So I think I go to for next step. Okay. So in which month you have joined this company? Um, 2023. 2023 के अराउंड मैम थोड़ा सा समथिंग जून जुलाई समथिंग था। एक्चुअली मेरे को याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं Okay. काफ़ी चीज़ जुड़ा रहता हूँ। Okay. So it's been almost 1.5. हाँ या समथिंग दैट experience, यस right? या। तो इतने टाइम में आपने कौन सी इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर की है? इंडस्ट्री एक्सप्लोर किया मैम, एजुकेशन सेक्टर में गया हूँ, देखा है मैंने। रियल एस्टेट जैसे मैंने आपको बताया वो भी देखा है मैंने सोलर जैसे बताया वो भी किया हुआ है। इसके अलावा मैंने कोचिंग्स के लिए काम किया हुआ है, जैसे मैंने एजुकेशन में ही आ गया फिर मैं कोचिंग्स के लिए काम किया। मैंने ट्रैवल के लिए भी काम किया हुआ है, ट्रैवल एजेंसी के अंदर भी मैंने काम किया हुआ है। ट्रैवल वेंचर्स करके कंपनी है, ये हमारे ग्वालियर की ही कंपनी है। उनका एसईओ हैंडलिंग मेरे सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे जो बाकी इंडस्ट्री बता रहा हूँ, जो मैं आप क्लाइंट दिखाए वो मेरे एजेंसी के क्लाइंट थे। जो मैं बता रहा हूँ ट्रैवल वेंचर जो मेरे पर्सनल क्लाइंट थे, इनके लिए मैं फ्रीलांसिंग करता था, इनके लिए मैं एसईओ करता था। देन मेरा इनका रहता था मेटा एड्स का पोर्शन रहता था, ये रहता था, प्लस इनके लिए कंटेंट की स्ट्रेटजी बताना, इनके लिए फनल क्रिएट करना मेरा काम रहता था, किस तरह से हम जा सकते हैं फनल के थ्रू, और मार्केट एनालाइज करना कि मार्केट में कितने प्राइसिंग वो चीज़ें चल रही हैं, क्या अवेलेबल करा रहे हैं, वो सारी को रेक्टिफाई करके मुझे देना होता। सो कोचिंग में आपने किस टाइप का वर्क किया है? पर्सनल कोच के लिए काम किया है, बिजनेस कोच के No, लिए ma'am, काम ma'am, किया है, for- कैटेगरी क्या है? तो ये आईएएस कोचिंग्स होती हैं, जो अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन कोचिंग्स होती है उनके लिए किया हुआ है। क्योंकि मोस्टली एमपी के अंदर मैं आपको बताऊँ मैम, मैं बच्चा जब 12th क्लास में आता है ना, उसको एक बार तो ट्राई करना ही है उसको एक बार कि भाई आईएएस की एसएससी की जाता ही है, बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर, तो कोचिंग बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पर, इसकी कोचिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि मार्केटिंग करानी है तो इजीली क्लाइंट मिल जाते हैं, तो आसान हो जाता है काम करना, इसलिए हमने उसकी कोचिंग के लिए प्रेफर किया था। ओके। जी एंड यू हैव डन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम एडीएमबी। यस मैम। ओके, वो आपने 2022 जुलाई में किया? हाँ जुलाई में किया था, उसका मैं फ्रीलांसिंग के अंदर गया, फिर मैंने सोचा चलो एक एजेंसी ज्वाइन कर लेते हैं, देन इजी होगा चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा, घर बैठ के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एज यू आर ऑलरेडी डूइंग आप क्या एक सेकंड। फ्रीलांसिंग, जी सॉरी why मैम। you want to go for agency experience only? Why you want to do a freelance? ऑन
शिट, मेरा फ़ोन लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। तो चार्जिंग पे थोड़ी